गौर करेगी। हाईकोर्ट ने लिया था हड़ताल पर संज्ञान। स्टाइपेंड सुरक्षा की मांग के लिए यह हड़ताल हुई थी। जो ताजा खबर है उस पर वो यही है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने जो हड़ताल हैं उसको खत्म कर देंगे। कोर्ट ने कमेटी बनाने का आदेश दिया। डॉक्टरों की मांगों पर कमेटी गौर करेगी और हाईकोर्ट ने लिया था हड़ताल पर संज्ञान। स्टाइपेंड हो, सुरक्षा की मांग हो, इन तमाम मांगों को लेकर यह हड़ताल जारी है। तो स्टाइपेंड सुरक्षा की मांग के लिए भी हड़ताल की जा रही थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से, और अब ये बात सामने आ रही है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी इस हड़ताल को खत्म कर देंगे। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो सोमू, रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। देखा जा सकता है कि ये जो हाईकोर्ट का जो संज्ञान है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आया है। बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी पॉजिटिव जो रिस्पांस है वो मिला है कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि एक कमेटी जो है वो बनेगी और ये कमेटी जो है वही इस पूरे मामले में आगे सुनवाई करेगी और जो ग्रीवेंसेस हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के उन सब पर जो है वो इस तरह से उनकी मांगों को सुना जाएगा और फिर एक फैसला जो है वो किया जाएगा। बहरहाल जो यहाँ पर सुनवाई हुई है उसके बाद क्या कुछ निकल करके आया है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। आना भाई जी, पकड़ो तो सही, मेरे भी लाइव माइक लगाओ। बोलो सर, आज इस मामले में क्या कुछ रहा हो? Our young colleague Mr. Parth Sharma has taken the initiative and requested the Honorable Court that the patients of the Rajasthan are suffering at large because of the strike by the resident doctors. The court was quite gracious to take the cognizance of what is going on because of the strike, and the hearing was accorded. All government functionaries, including the representatives of the striking doctors, made their respective submissions and raised their grievances. And after hearing everything by the Honorable Court, the striking doctors have shown the sympathetic consideration by revoking the strike forthwith. And as a result, the strike has been revoked forthwith. And for redressal of the grievances of the doctors, striking doctors herein, a committee has been constituted by the Honorable Court, and the members of the committees have also been specified in the order passed today by the Honorable Court, and committee will sit on the coming Saturday and thereafter will submit its report on 22nd of November. This all has happened, and this is a great news, good news for the public who was suffering at large throughout the Rajasthan because of the doctors' strike. This all has happened today in the court. डॉक्टर्स को भी के खिलाफ भी नो कोरेसिव एक्शन के आदेश दिए हैं। Yes, doctors raised their apprehension that various show cause notices have been issued against us. We should be protected. The Honorable Court was quite gracious to pass an order to this effect that all these show cause notices issued against the various doctors shall be put under suspended animation till further orders. एसएमएस में ड्रग बेचने की, शराब बेचने की बात भी सामने आई कोर्ट में। It was also said by the striking doctors that we are too concerned with the safety of ourselves and our colleagues, including the female colleagues, and any incident like RG Medical College, Calcutta can occur in this state also, because within the close proximity of the hospital, the various unsocial elements have encroached the area, and where the illegal trading of liquor is going on, and it may cause trouble at any time. That's why the Honorable Court was pleased to call the SHO concerned, and orally he was directed to remove the encroachment after examining that it is the encroachment only then, and see that no illegal trading of the liquor and other
illicit drugs or this that occurs. कमेटी 26 तारीख को बैठक करेगी, बैठक के बाद क्या कुछ कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है या क्या? कमेटी 26 तारीख को उनकी दोनों साइड के ग्रीवांसेस को सुनने के बाद में अपनी रिपोर्ट जो है क्या मिनट का वो हुआ इसको अवगत कराएंगे. कोर्ट शैल बी अप्राइज्ड ऑन द नेक्स्ट 22nd ऑफ दिस. कमेटी में किस किस को शामिल किया? कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन एंड द अदर मेंबर्स एंड 2 representatives of the striking doctors will also be part of the one male and one female and other members will also be there. Thank you. तो देखिए साफ तौर पर ये कमेटी जो है वो गठित की गई है कोर्ट के द्वारा और इस कमेटी में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कि स्ट्राइक कर रहे थे वे भी शामिल होंगे और उनकी तरफ से एक महिला प्रतिनिधि और एक पुरुष प्रतिनिधि शामिल होंगे और जब बैठक होगी तो उसके बाद इस बात पर चर्चा होगी जो इनकी मांगें थी उस मांगों को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट जो है वो कमेटी को बाद में कोर्ट को भी देनी है, इसलिए ये जो आने वाली बैठकें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं. नहीं सोमू, जैसे कि जज साहब भी बता रहे थे यहाँ पर कि ये जो कमेटी बनेगी, इन कमेटी में किन मुद्दों को लाया जाएगा, यानी किन मुद्दों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए रखा जाएगा, ये क्या कौन कौन से मुद्दे होंगे वो? हाँ बिल्कुल, देखिए 8 सूत्रीय जो मांगे थी रेजिडेंट डॉक्टर्स की सबसे प्रमुखता से वही मांगे हैं और जैसा कि अभी भी कोर्ट में भी इस बात की चर्चा हुई कि जो सुरक्षा का मामला है वो एक गंभीर मामला है और इसको लेकर के जो SHO हैं उनको भी बुलाया गया, उनको भी डायरेक्ट किया गया कि अगर SMS अस्पताल के अंदर कहीं पे इंक्रोचमेंट है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसको वहाँ से हटाया जाए. यह भी कहा गया था कि वहाँ पर शराब और बाकी इस तरह की चीज़ें जो है वो बेची जाती हैं और उसका सेवन होता है, तो उसको लेकर के भी कोर्ट ने SHO को ये दिशा निर्देश दिए हैं. कहा है कि वो इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई करें. नज़दीकी जो पुलिस थाना है, SMS पुलिस थाना, वहाँ के भी अधिकारियों को बुलाया गया था. तो साफ तौर पे जो सुरक्षा के कॉन्सर्न्स खास तौर पे थे इन सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स के, उसको तुरंत में सॉल्व करने के आदेश जो है वह दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से. और कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मरीज जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे थे बड़ी संख्या में, इसलिए दोनों ही पक्षों को एक तरह से सुलह पर आना होगा. इसलिए ये कमेटी जो है वो बनी रही. रेजिडेंट डॉक्टर्स भी इस बात की मांग कर रहे थे कि उनकी सुनवाई हो और उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि पहले भी जब स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई थी तब भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि उसके बाद जब अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि इनसे बातचीत की जाए तो वो बातचीत नहीं हो पा रही थी. उनकी मांग थी कि बातचीत हो. अब जब कमेटी का गठन हो चुका है जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, तब एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खुला है और क्योंकि हड़ताल अभी से समाप्त हो रही है तो इससे मरीजों को सीधे तौर पर राहत मिलनी शुरू होगी. ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए. तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक कमेटी का गठन किया गया है और उसमें कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स भी रहेंगे, सीनियर डॉक्टर्स भी रहेंगे, ताकि वो और अच्छे से समझ पाएँ कि इनकी जो 8 सूत्री मांग है उसको और कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए.